Assalamu alaikum. My name is Dr. Fatma Shadat and I am a third year MBBS student. Today I'm here to deliver a sort of little bit important and easy lecture on cellular adaptations. As you know that it is a very much important topic in pathology and many of the students find it almost difficult to learn or make a sort of concept. So I'm here to deliver a sort of little bit important concept on cellular adaptations and tell you how to build notes, especially when you're reading sort of big robins. So you could easily held up with the big robins and you could follow up this lecture in order to build up your concept and follow my notes. So let's get started. This is the topic on cellular adaptations. It can be defined as reversible changes in size, number, phenotype, metabolic activity, or functions of cells in response to changes in their environment. So we can get that cellular adaptations is such thing, like you can say that in our environment we have to face a lot of difficulties or like a sort of any stimuli we are facing all the time. So same the case with the cells. They have to face a lot of stimuli, external stimuli, internal stimuli, or sort of changes in the environment. And they have to adapt them in order to become fittest in the environment. So any change, you can say that it is the reversible changes. Like we get this कि ये जो हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, यानी कि अगर स्टिमुलाई जो सेल पर आ रहा है अगर वो कॉन्टीन्यूसली ना हो, मतलब कि एक टाइम के बाद अगर वो चेंज हो जाए, स्टिमुलाई ख़त्म हो जाए, तो दोबारा से जो सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं. तो जो रिवर्सिबल चेंजेस होंगे इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट, इट मे बी अ चेंज इन देयर साइज, नंबर और एनी देयर एक्सप्रेशन, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और जो सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे बचने के लिए यानी उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट यानी टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स इन देयर changes in the environment. So you can say the next definition is a reversible functional and structural response to changes in physiologic states and some pathological stimuli. यानी सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल सेल जो है वो लाइक फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में भी अपने आप को ठीक रखने के लिए, फिजियोलॉजिकल स्टेट में भी सर्वाइव करने के लिए कुछ रिवर्सिबल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकता है. और कुछ पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई होते हैं, कोई डिजीज हो गई या कोई इंजरी होगी, मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो भी चेंजेस करेगा it is under cellular adaptations. तो एक नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करते हैं कि फॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है. अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है और डिफरेंट लेवल पर अगर वो प्रोसेस चेंज हो जाए या स्टॉप हो जाए या डिफरेंट मैकेनिज्म में एंटर हो जाए तो डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है. ये एक सिंपल एडिशनल पॉइंट है. फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक सेल मास, जब एक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक सेल मास की, अगर उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ना हो तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज एजेनेसिस, यानी वहाँ उसके बाद आगे प्रोसेस नहीं होगा. अगर उसके बाद वो फर्दर डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू सेल्स एंड देन स्पेसिफिक टिश्यूज, यानी डिफरेंशिएटेड टू ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यूज एंड देन इट अंडरगोज एंड डिफरेंशिएशन, इट इज टर्म्ड एज एप्लेसिया. Then at the same point we could infer that अगर वही जो टिश्यू है ऑर्गन में डेवलप हो गया और फर्दर आगे फॉर्मेशन नहीं हो रही यानी फीटल डेवलपमेंट में, तो दिस इज टर्म्ड एज डिसजेनेसिस. एंड अगर फर्दर उसकी लाइक ऑर्गन्स ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स टू फुल साइज और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, then it is termed as hypoplasia, or like it is a sort of regular steps. And at any stage when it undergoes undifferentiation or stop the development due to any reason, there are specific terms which we have discussed so far, which are agenesis, aplasia, dysgenesis, and hypoplasia. So let's come to the point, which is cell injury. So what is cell injury? It is defined as if the limits of adaptive responses are exceeded or if cells are exposed to injurious agents, stress becomes compromised by mutations that affect essential cellular constituents. A sequence of events follows that is termed as cell injury. It may be irreversible, it may be irreversible. Like you can say that अब सेल पे जो है एक स्टिमुलाई आ रहा था और इससे अपने आप को अडेप्ट कर लिया. एक टाइम आता है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल माइल्ड अगर स्टिमुलाई है तो नॉर्मल सेल जो है वो अडेप्ट रहेगा, लेकिन एक सेल की कितनी एक हिम्मत होगी कि वो उसको जो है वो अडेप्ट कि कितना अपने आप को जो है वो चेंज कर लेगा. अगर यही प्रोसेस रहा और अगर जो स्टिमुलाई है वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इंजरी देने लग जाए या फिर इन्फ्लेमेटरस इतना ज़्यादा इंजूरियस हो चुका है, इतना टॉक्सिक हो चुका है वो स्टिमुलाई कि सेल जो है अब सर्वाइव करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया, तो इट अंडरगोज, या सर्वाइव करना तो पॉसिबल ही है लेकिन अगर अडेप्टेबिलिटी उसकी अब नहीं हो पा रही तो देन अंडरगोज सेल इंजरी. इट मे बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. यानी आप ये बात ले सकते हैं, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है. अगर उस पर हम स्टिमुलाई ऐड करते हैं या स्ट्रेस ऐड करते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है, अगर हम उस पर देते हैं
लाइक हेयर, अगर हम पॉजिटिव स्ट्रेस इसको देते हैं तो इट बिकम्स अडेप्टेड सेल, और अगर वो अडेप्टेड सेल की कंडीशन में रहता है और दैट्स गुड, और अगर हम स्ट्रेस को अगर हटा लेते हैं तो दोबारा से वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा. तो यू कैन से दैट द स्ट्रेस इज रिवर्सिबल. बट अगर दैट अडेप्टेड सेल इज लाइक इट अंडरगोज सेलुलर इंजरी, जैसे यहाँ पे हमने रीजंस बताई हैं कि अगर लिमिट्स ऑफ अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज अब एक्सीड हो चुकी हैं, जूरियस एजेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, या फिर म्यूटेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, जेनेटिक इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि अब वो इतना अडेप्ट नहीं हो पा रहा, तो इट मे बी रिवर्सिबल, यानी दोबारा से वो अडेप्टेड सेल होकर नॉर्मल सेल बन सकता है. अडेप्टेड सेल जो है सेल इंजरी के प्रोसेस में जाने के बाद रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू नॉर्मल सेल बन सकता है. लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल है तो फिर अल्टीमेट फेट इज एक्चुअली द सेल डेथ, व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो किस वर्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, दिस इज जस्ट एडिशनल पॉइंट. तो स्ट्रेस में भी इंक्रीज डिक्रीज वर्कलोड, लाइक मसल्स के केस में बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं तो इन पर इंक्रीज डिक्रीज वर्कलोड जो हम डालेंगे तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. और इसी तरह इंक्रीज डिक्रीज स्टिमुला, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार स्टिमुलस देंगे तो डेफिनेटली फिर वो चेंजिंग दिखाएगा. ठीक है, तो अडेप्टेड सेल्स लाइक अडेप्टेड सेल्स किस तरह के हो सकते हैं और कौन कौन से मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं. सो इट मे बी हाइपरप्लेजिया, लाइक हाइपरप्लेजिया, मोर सेल्स, हाइपरट्रोफी, बिगर सेल्स, एट्रोफी, स्मॉलर सेल्स, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया. नॉट एक्चुअली मेटाप्लेजिया इज नॉट लाइक अंडर द कैटेगरी ऑफ अडेप्टेशन, बट लाइक चूंकि एक प्लेजिया चलता आ रहा है तो हमने डिस्प्लेजिया भी डाल दिया. सो ओके, तो मेन टॉपिक है एट्रोफी. तो एट्रोफी पे हम डेफिनेशन पे आते हैं. एट्रोफी इज एक्चुअली द श्रिंकेज इन द साइज ऑफ सेल्स बाय द लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस. लाइक एक जो सेल है वो स्टिमुलाई या स्ट्रेस की वजह से अपना साइज जो है श्रिंक कर लेता है, और किस तरह करता है कि जो अपने सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन या उनकी कैपेसिटी को कम करके, लाइक लॉस ऑफ सेलुलर सब्सटेंस, अपने सब्सटेंसेस अंदर से कम करके सिंपल एक छोटा साइज आ जाता है कि जहाँ पे उसका सर्वाइवल रेट पॉसिबल हो, उसकी सर्वाइवलिटी पॉसिबल है, लेकिन वो अडेप्ट कर गया है और वो स्ट्रेस को कम्फर कर रहा है. तो ये हो गया अडेप्ट्रोफी. तो इट इज़ एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स. इट इज एक्चुअली अडेप्टिव रिस्पॉन्स व्हेन लार्ज नंबर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, द एंटायर टिश्यू ऑर्गन डिक्रीजेस इन साइज और बिकम्स एट्रोफीड. जाहिर सी बात है जब बहुत सारे जो सेल्स होंगे वो अडेप्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो ऑर्गन का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो यू कैन से दैट इन एट्रोफी देयर इज डिक्रीज इन साइज, बट लेटर ऑन अगर वो स्टिमुलस कंटिन्यूस अप्लाई होगा तो एक टाइम आएगा कि सेल जो है अपना नंबर भी डिक्रीज कर लेगा. ठीक है, due to loss of cell, like which is termed as apoptosis. So it is not only the decrease in size, but a time came when it leads to decrease in the number as well. So it may be physiologic or it may be pathologic. So physiologic includes like during the fetal development, the regression of the notochord and thyroglossal duct is an example of physiologic atrophy, and during delivery after parturition the uterus gets become atrophied, so it comes under the heading of physiologic atrophy. Or maybe pathologic. तो pathologic के different reasons हैं. It may be due to disuse, endocrinal effect, degeneration, aging, ischemia, pressure and nutritional. तो इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर पैथोलॉजी की बात करें, डिसयूज की बात करते हैं, तो डिसयूज में ये हो जाता है फॉर एग्जांपल कि अगर एक मसल है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो उसकी लाइक वो अगर अनफंक्शनल रहेगा बहुत देर के लिए तो सेल्स बिकम अनफंक्शनल. जब सेल्स को कोई काम नहीं होगा तो वो श्रिंक करके एट्रोफीड हो जाएंगे कि भाई अभी हमारा कोई काम नहीं है तो हमने छोटा हो जाना. फॉर एग्जांपल अगर किसी बोन का फ्रैक्चर होता है तो उस बोन पे जो स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगे दे आर अंडर डिसयूज. ठीक है, डिसयूज की वजह से वो एट्रोफीड हो जाएंगे. इसी तरह हम एंडोक्राइनल इफेक्ट की बात करते हैं. कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक यूट्रस, ब्रेस्ट, इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर अंडर एंडोक्राइनल कंट्रोल. जब एक नॉर्मल स्टिमुलस या एक नॉर्मल हार्मोनल उन पर इम्पैक्ट नहीं आएगा तो दे बिकम्स एट्रोफीड. ठीक है, डिनर्वेशन पे आते हैं. हर मसल जो है उसकी अपनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है. अगर उसकी नर्व सप्लाई को हम कट ऑफ कर दें या डैमेज हो जाए किसी रीज़न की तो वो मसल बिकम्स एट्रोफीड. देन वी कम टुवर्ड्स इस्कीमिया. इस्कीमिया में आप ये ले सकते हैं कि इस्कीमिया एक मसल पे आप ब्लड सप्लाई जा रही है और उसकी ब्लड सप्लाई उसकी न्यूट्रिशन को उसकी जो न्यूट्रिशन है, ब्लड सप्लाई जो उसकी न्यूट्रिशन है, आप उसको इम्पीड कर दो या रोक दो किसी भी तो इट बिकम्स एट्रोफीड. प्रेशर एक जगह पे फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कैंसर डेवलप हो रहा है या ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को एट्रोफी कर सकता है बाय प्रेसिंग देम. देन कम्स द न्यूट्रिशनल कॉज. लाइक अगर एक मसल को आपको उसकी न्यूट्रिशन कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक मसल वेस्टिंग हो सकती है, आपको विटामिन डेफिशिएंसी, किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से अगर मसल सफ़र करता है तो इट बिकम्स एट्रोफीड. एंड द लास्ट वन इज एजिंग. आपने अक्सर देखा होगा कि विद द एज द मसल्स जो होते हैं ना उनकी जो एक हाइपरटोनिसिटी होती है, उनकी जो टोन होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो इट इज़
it is also a physiologic factor that with the passage of time, with aging, the muscle becomes atrophied. So then we discuss the causes of atrophy, like the decreased workload or disuse atrophy. Decreased workload, disuse atrophy. The examples include are polio, fractured bone, and osteoporosis of disuse. Like after osteoporosis, the bones becomes weakened. So it also comes under the heading of decreased workload or disuse atrophy. Then comes the loss of denervation. जैसे मैं आपको पहले बताया, नर्व सप्लाई आप किसी भी मसल की आप डैमेज कर दें या कट ऑफ कर दें तो मसल जो है एट्रोफी कर जाएगा और उसको हम डिनर्वेशन एट्रोफी कहेंगे. ठीक है. अगर आपने देखा होगा कोई भी अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है और एक पर्टिकुलर मसल जो उससे सप्लाई हो रहा होता है अगर वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो मसल होता है उसकी टोन दूसरे मसल से डिफरेंट हो जाती है एंड बिकम्स डिक्रीज इन इट्स साइज, व्हिच इज टर्म्ड एज डिनर्वेशन एट्रोफी. Then we talk about the inadequate nutrition. Like everything requires its nutrition or blood supply. So if we do that, due to inadequate nutrition, that muscle undergoes atrophy. Like अगर muscle wasting की हम बात करें, extreme muscle wasting terms as cachexia. ठीक है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कैंसर के केसेस में आपने देखा होगा कि कैंसर में क्या होता है कि जो इंसान का वज़न होता है, जो वेट होता है, वो जो मसल्स होते हैं दे बिकम्स डिक्रीज इन देयर साइज, वज़न जो है उसका कम हो जाता है. यही रीज़न है क्योंकि इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से सारे क्योंकि ट्यूमर जो है सारी न्यूट्रिशन ले जाता है तो बाकी मसल्स जो है वो सफ़र करते हैं. देन वी टॉक अबाउट लॉस ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलेशन. अगर उसकी स्टिमुलेशन को आप कट ऑफ कर दें या उसकी स्टिमुलेशन को आप डिस्टर्ब कर दें तो मसल बिकम एट्रोफीड. देन कम्स एजिंग. एजिंग में जैसे बुक में एक बात लिखी हुई थी, सेनाइल एट्रोफी. सेनाइल एट्रोफी इज अ सॉर्ट लाइक एक ब्लड वेजल है और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से प्लैक्स बन जाते हैं और नॉर्मल एक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, स्पेशली इन द हार्ट एंड ब्रेन. हार्ट और ब्रेन अगर सफ़र करेंगे तो they undergoes atrophy and that atrophy is referred as senile atrophy. And the last one is the pressure atrophy. Same is the case, एक particular organ पे आप particular structure पे अगर आप pressure apply करें और वो surrounding structures को अगर disturb करता है और इतना for example अगर एक जगह पे tumor develop हो जाए और ट्यूमर जो है वो बाकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को अगर डिस्टर्ब करे या इतना प्रेस करे कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए तो इट इज़ टर्म्ड एज प्रेशर एट्रोफी. सो some of the features include the fundamental cellular changes are identical, are reiterated with the cell to a smaller size at which survival is still possible. Like the size is decreased. Size जो है वो तो कम हो गया, but size is decreased to such an extent that survival rate is still possible. यानी सेल अभी भी सर्वाइव करेगा, ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, सर्वाइव करेगा लेकिन सिर्फ स्मॉल हो गया साइज में. Reduction in structural components of the cell. यानी आप ये कह सकते हैं कि सेल किस तरह अपने साइज में डिक्रीज होगा. स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स जो है ना सेल के वो कम हो जाएंगे. Then comes cells have diminished functions but not dead. जो cells हैं वो अपने functions को कम कर लेगा लेकिन ख़त्म या dead नहीं होगा. Contributes to the regression of endocrine organs after hormonal withdrawal, shrinkage of secretory glands after duct obstruction. Like जैसे आपको पहले बताया कि अगर endocrine organs हैं which are under hormonal control और अगर वो hormonal withdrawal हो जाए like uterus or breast तो they undergoes atrophy. So very much important point is the mechanism which is often asked in the question or in the MCQ probably or in the Viva as well. So what is the mechanism of atrophy? Simple, दो words हैं, आप दो important key points अपने जहन में रख लें so that will be enough. Mechanism क्या है? Decreased protein synthesis because of decreased metabolic activity. जाहिर सी बात है एक सेल अगर फॉर एग्जांपल में आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है ना तो वो सुस्त हो जाता है. इसी तरह अगर सेल की अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एक पर्टिकुलर ऑर्गन के जितने भी सेल्स उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी उसको करने की जरूरत नहीं है. सो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसको प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है. सो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. एंड द सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन. यानी जब उसने अपने जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं उनको कम करके अपने डिक्रीज इन साइज में जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी. Plays key role in atrophy, lysosomal acid hydrolysis, cathepsins and other enzymes degrade endocytosed proteins. Lysosomal acid hydrolysis, cathepsins and other enzymes degrade endocytosed proteins. Different mechanisms involved होंगे, जाहिर सी बात है प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए lysosomal enzymes involved होंगे और different enzymes involved होंगे. ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस protein degradation में, it is the ubiquitin proteasome system. As I have already discussed that protein degradation, the mechanism involved is mainly the ubiquitin proteasome pathway. So this pathway is responsible for the degradation of many cytosolic and nuclear proteins.
आपको इसका प्रोसेस पता होगा इफ यू हैव स्टडीड बायोकेम, तो उसमें ये प्रोसेस ये था कि लाइक स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूबिक्विटिन एंड देन sort of protein complex is formed which is referred as proteasome, and that recognition by the ubiquitin and the binding of that targeted protein by the ubiquitin then causes that protein to be entered into the proteasome complex, and that complex causes the degradation of that protein into its smaller fragments or into amino acids. And the second important process is the autophagy. Like autophagy एक proper एक mechanism है और इसके through भी cells है it undergoes self eating, अपने ही cell को जो है खुद खाने लग जाता है. इसके बाद एक बहुत important point आता है brown atrophy. What is brown atrophy? In many situations, atrophy is accompanied by marked increase in number of autophagic vacuoles. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेल ने अपने आप को ही खाना है तो इट फॉर्म्स सर्जन ग्रेन्यूल्स लाइक लाइपोफ्यूजन ग्रेन्यूल्स बनेंगे और उनकी वहाँ पे ना वैक्यूल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे एंड देन गिव्स द ब्राउन डिस्कलरेशन टू द टिश्यूज. जब वहाँ पे ब्राउन डिस्कलरेशन प्रोड्यूस होगी ना और एट्रोफीड हो रही है, उसे अपने अपने सेल्स को खाना है, तो उस जगह पे हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, ब्राउन एट्रोफी हो गई है. एट्रोफी तो हो रही है सेलुलर ईटिंग की वजह से, जो वहाँ पे ग्रेन्यूल्स आएंगे ना अपने आप को खाने के लिए, अपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को खाने के लिए स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्राउन एट्रोफी. एग्जाम्पल ऑफ सच वैक्यूल इज लाइपोफ्यूजन ग्रेन्यूल पार्टिंग अ ब्राउन डिस्कलरेशन टू द टिश्यूज. ओके, सो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है. लाइक लोकल एट्रोफी. लोकल एट्रोफी हो गई कहाँ पे, डिसयूज ऑफ आर्म, आपने आर्म को यूज़ नहीं किया, जैसे वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया बोन का, आर्म की जो बोन थी उसका ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, तो उस पर जो मसल्स अटैच होंगे अंडरगोज डिसयूज और एट्रोफी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. इसी तरह थाइमस ग्लैंड है, फीटल जो चिल्ड्रन लाइफ होती है, ठीक है, तो उसमें जो है थाइमस ग्लैंड एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, बट इन एडल्ट लाइफ इट अंडरगोज एट्रोफी. इसी तरह एट्रोफी ऑफ किडनी, अगर आप एट्रोफी ऑफ किडनी हम कहेंगे अगर किडनी को कोई ट्रॉमा होता है या कोई भी आप किडनी राइट या लेफ्ट की बात कर लें, उसकी आप ब्लड सप्लाई को आप डैमेज करते हैं तो दैट किडनी अंडरगोज एट्रोफी. ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि किडनी में क्या मैकेनिज्म होगा श्रिंकेज के लिहाज से, इसकी श्रिंकेज की क्या रीज़न है, तो इट इज़ एट्रोफी. इसी तरह कॉर्टिकल एट्रोफी, आप यू कैन फॉलो द रॉबिन्स बुक. तो रॉबिन्स में एक कॉर्टिकल एट्रोफी की डायग्राम बनी हुई है, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि जब आप ब्रेन यूटिलाइज नहीं होगा, लाइक ब्रेन की कोई भी आप जैसे डिफरेंट रीजंस की वजह से अंडरगोस कॉर्टिकल एट्रोफी, एंड द लास्ट इज एट्रोफी इन ऑस्टियोपोरोसिस. दिस इज एट्रोफी. द एग्जांपल इज पोलियोमाइलिटिस. एंड देन वी टॉक अबाउट द हाइपरट्रोफी. So hypertrophy is actually increase in size of organ tissue as a result of increase in the size of cells. यानी एक organ या tissue का size का increase हो जाना due to increase in the size of cells. यानी उस organ या tissue में जो cells हैं वो अपना size अगर increase कर लें तो overall organ tissue का size increase हो जाएगा. So simple words, it is termed as hypertrophy, not a result of cellular swelling. यानी अगर आप इसकी reason में जाएं तो hypertrophy is not a result of cellular swelling. सेलुलर स्वेलिंग नहीं हुई है, उसमें कोई वाटर का इन्फ्लक्स नहीं हो गया, ठीक है. इंक्रीज इन सेलुलर कंपोनेंट्स, उसकी रीजन है कि सेलुलर कंपोनेंट, जैसे हमने एट्रोफी में कहा था ना कि हमने सेलुलर कंपोनेंट्स को डिक्रीज कर दिया, डिग्रेड कर दिया, प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दिया, यहाँ पे रिवर्स होगा, सेलुलर कंपोनेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए. नो न्यू सेल्स, जस्ट लार्जर सेल्स. कि इसमें हाइपरट्रोफी में कोई नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते, नो प्रोलिफरेशन अकर्स, जस्ट लार्जर सेल्स. इट मे बी फिजियोलॉजिक और मे बी पैथोलॉजिक. और फिजियोलॉजिकल रीज़न ये हो सकती है कि एक ऑर्गन अगर अपना साइज इंक्रीज हो जाए तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज फंक्शन डिमांड. अगर आप मसल्स की बात करें, अगर मसल्स से हमने बहुत ज़्यादा काम लेना होगा तो दे बिकम्स हाइपरट्रोफी बिकॉज द नीड इज इंक्रीज फंक्शन डिमांड. इसी तरह अगर कुछ ऑर्गन्स दे आर हार्मोनल, दे आर अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, तो ड्यू टू बाय स्पेसिफिक हार्मोनल स्टिमुलेशन, कॉन्टिन्यूस हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से जो है वो दैट ऑर्गन बिकम्स हाइपरट्रोफी. फॉर एग्जाम्पल यूट्रस, अगर उसमें आप कोई भी यूट्रस के केस में अगर ईस्ट्रोजन्स का हार्मोनल लेवल इंक्रीज हो जाए, ईस्ट्रोजन्स का हार्मोनल लेवल इंक्रीज होने की वजह से इट बिकम्स हाइपरट्रोफी. तो उसमें आप कह सकते हो स्पेसिफिक हार्मोनल स्टिमुलेशन. सो हाइपरट्रोफी के एग्जाम्पल्स पे आते हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपरट्रोफी की बात करें तो जो यूट्रस में मायोमेट्रियम होता है ना, मायोमेट्रियम विच इज स्मूथ मसल लेयर, वो जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे बिकम्स हाइपरट्रोफीड बिकॉज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रीप्रोलिफरेट अगेन, दे जस्ट अंडरगो हाइपरट्रोफी. और ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, लाइक ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन में आप ले सकते हैं कि ड्यूरिंग लैक्टेशन जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे नॉट ओनली अंडरगोज हाइपरप्लेजिया but they at times also undergoes hypertrophy. It is a sort of exceptional rule.
So the main stimulus which is required to undergo hypertrophy is actually the increased workload on the muscles. And another example includes striated muscle hypertrophy. Striated muscles are the skeletal muscles and the cardiac muscles. So you can say that these can undergo hypertrophy in chronic, for example, in cardiac muscle hypertrophy, under chronic hemodynamic overload, they undergoes hypertrophy. Also, due to hypertension and faulty valves. Skeletal muscle hypertrophy, heavy work or strenuous exercise due to heavy work and that जो skeletal muscle होता है, अगर हम उसकी hypertrophy की बात करें, reason की बात करें, तो due to increased workload, like increased heavy work or due to strenuous exercise, that cells undergoes increased in their size, that is referred to as hypertrophy. So let's come towards an important concept, which is the pathogenesis of hypertrophy. So the main mechanism behind hypertrophy is the result of increased production of cellular proteins. Like we previously discussed it, atrophy is actually the decrease in the production of proteins or the increased degradation. Like एक तरफ आप atrophy की बात करो जिसमें हमने decrease in size किया, तो उसकी reason ये थी कि proteins को हमने decrease कर दी, उसकी synthesis को, उसकी degradation increase कर दी. But अगर आपने cell का size increase करना है, so it occurs due to increased production of cellular proteins. अब cellular proteins की synthesis increase कैसे हो गई, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं hypertrophy, like expression of new genes, for example in the reinduction of ANF gene in cardiac myocytes. Like we can say that अगर हम expression of new genes की बात करते हैं, continuous stimulus apply होता है, like अब देखें कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, जैसे हमने स्टिमुलस की बात की कि इंक्रीज वर्कलोड है, कोई भी अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जब अप्लाई होगा तो जो सेल मेम्ब्रेन पे कुछ मैकेनिकल सेंसर्स प्रेजेंट होंगे, वो मैकेनिकल सेंसर्स क्या करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन पर इंक्रीज कर देंगे एगोनिस्ट और ग्रोथ फैक्टर्स की फॉर्मेशन को. वो एगोनिस्ट और ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उसके साथ अटैच होके एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इस्टेब्लिश कर देंगे. जब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इस्टेब्लिश होगा तो इट कॉजेज द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लाइक वी हैव स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री, transcription factors causes increased division of the cells, or you can say the cells becomes hypertrophied or increased production of cellular proteins. In expression of genes होगी, new genes बनेगी, new genes से new proteins बनेंगी, और structural components जो है वो cells की increase हो जाएंगी, और structural components के increase होने के बाद वो cell जो है वो increase हो जाएगा अपने size में, ठीक है. So next point is switching of contractile proteins from adult to neonatal or fetal form with induction of other factors such as C-force, C-junction, EGR1, FGF, alpha-adrenergic agonist and endothelin-1. Like ये जो factors मैंने already discuss किए हैं, like agonist हो गए और जो agonist हो गए, growth factors हो गए, ये क्या करेंगे, like on the other hand at the same time जैसे एक cell का size increase हो रहा है due to increased production of cellular proteins, at the same time जो contractile proteins already present होंगी, ठीक है, वो अपनी अडल्ट फॉर्म से न्यूनेटल और फीटल फॉर्म में आ जाएंगे. उसकी रीज़न ये है कि एफिनिटी इंक्रीज होगी, वर्किंग एबिलिटी एफिनिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो ये भी एक फिनोमेना इसमें आ जाएगा कि ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स लाइक इन मायोसाइट्स में ये होता है कि हाइपरट्रोफी जब कार्डिक मायोसाइट्स की होती है, उसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है वो अपने एडल्ट फॉर्म में, लाइक एक एडल्ट ह्यूमन है उसमें जो प्रोटीन होगी वो जो है फीटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. तो इसमें हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जो कि मे बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस और वाइवा. हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल्स इन एस्थमा, लेकिन एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं दे अंडरगोस हाइपरट्रोफी. एंड अनदर एग्जांपल इज कार्डिक हाइपरट्रोफी so far. So if you have any queries related to hypertrophy, please ask in the comment section below. So now I am moving towards very much important and different concept, which is the hyperplasia. So hyperplasia is defined as increase in the number of cells in an organ, tissue, which may then have increased volume. I repeat, increase in the number of cells in an organ, tissue, which may then have increased volume. It may be physiologic or it may be pathologic. हमने hypertrophy में ये बात की थी ना कि it is actually an increase in the size of cells or overall increase in the size of tissue or organ. But hyperplasia में क्या हो रहा है कि जो cells हैं they undergoes proliferation, they undergoes repeated mitotic divisions, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि number of cells increase करेंगे, ठीक है. जैसे हमने ब्रेस्ट के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं अंडर हार्मोनल कंट्रोल, दे नॉट ओनली अंडरगोस हाइपरप्लेजिया व्हिच विल बी डिस्कस नेक्स्ट, दे आल्सो अंडरगो सॉर्ट ऑफ हाइपरट्रोफी एज वेल. तो हाइपरप्लेजिया उन ऑर्गन से, उन टिश्यूज़ में होगा, उन सेल्स में होगा जो कि एक्टिवली प्रोलिफरेट कर सकेंगे, लाइक जो कार्डिक मायोसाइट्स हो गए या फिर जो स्केलेटल मसल्स हो गए, किडनी हो गई,
वो एक दफ़ा जब एडल्ट मेच्योर फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे ना, उसके बाद फर्दर उनमें प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी इतनी नहीं होगी कि वो हाइपरप्लेजिया हो, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई हुआ और वो हाइपरप्लेजिया में चले जाएं। देन अंडरगोस हाइपरट्रोफी, उनके लिए हाइपरट्रोफी में जाना ज़्यादा आसान है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, दे हैव द एबिलिटी टू अंडरगो रीमाइटोटिक डिविएंस, दे अंडरगो प्रोलिफरेशन ऑर्डर टू बिकम्स इंक्रीज इन देयर साइज, तो इसकी वजह से भी साइज या वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसके कुछ फिजियोलॉजिक रीजंस हैं और कुछ पैथोलॉजिक रीजंस और पैथोलॉजिक कॉजेज हैं। तो फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो वी हैव टू कॉजेज, इट मे बी हार्मोनल और इट मे बी कंपेंसेटरी। अगर हम हार्मोनल की मैं बात करूं तो इसमें एग्जांपल आती है प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी एक नॉर्मल फीमेल है और वो ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज at the time of puberty, जो उसके glandular epithelial cells हैं, that undergoes proliferation and undergoes hyperplasia in order to get developed. And also during pregnancy, they're due to hormonal factors. Under the hormonal control, those cells undergoes hyperplasia. ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि glandular epithelial cells जो होते हैं फीमेल में at the time of puberty or pregnancy, that undergoes hyperplasia. I repeat, hyperplasia. But little bit exception occurs, which is hypertrophy. Like at the same time, थोड़ी बहुत hypertrophy भी होगी because they have the ability to produce like to undergo increase in size as well. But hyperplasia की due to hormonal control ज़्यादा activity है, तो hyperplasia के अंदर ये जाता है। ठीक है, तो the best example is the glandular epithelium of the breast, and another example includes, yes, you're right, हाइपरप्लेजिया प्रेग्नेंट यूट्रस। लाइक जो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम का पार्ट होता है, क्या होता है, एंडोमेट्रियम का जो पार्ट होता है, इट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया। ठीक है, लाइक हमने पीछे हाइपरट्रोफी में डिस्कस की थी कि जो यूट्रस में मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम अंडरगोज हाइपरट्रोफी। जो एंडोमेट्रियम होती है, जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल शट ऑफ हो जाती है, इन प्रेग्नेंट यूट्रस इट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। एंड द कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स इज आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टोमी। यानी अगर आप एक लिवर का लोब जो है अगर आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो बाकी का जो लिवर होगा इट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया, कॉन्टिन्यूस सेल प्रोलिफरेशन होगी, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगी, दोबारा से वो पूरा एक लिवर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो a normal physiologic process, a physiologic response, and it occurs in the liver because it has the ability to undergo increased proliferation. And the second one is the bone marrow. बोन मैरो में आप ले लें फॉर एग्जांपल एनीमिया का केस है। ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स होंगे अंडर द फैक्ट ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, जो स्टेम सेल्स होंगे आरबीसीज के, वो दोबारा से प्रोलिफरेट करेंगे और विद इन फ्यू डेज अंडरगोस माइटोटिक डिविएंस और फॉर्म न्यू मैच्योर आरबीसीज। तो बोन मैरो में भी बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स उनमें भी एबिलिटी है कि अंडर द कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स दैट अंडरगोस हाइपरप्लेजिया in order to fulfill the need of the body in case of RBCs. Now, I explain to you the very much important concept, which is the mechanism or the pathogenesis of hyperplasia. अब hyperplasia हो क्यों जाता है? hyperplasia के पीछे कोई तो रीजन होगी कि इतना आसान प्रोसेस तो नहीं कि स्टिमुलस और स्ट्रेस अप्लाई हुआ और बॉडी अंडरगोस हाइपरट्रोफी और द सेल्स अंडरगोस हाइपरप्लेजिया। कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होंगे, रिस्पॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड हैव टू लिसन टू इट। द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया इन्वॉल्व्स व्हिच इज शोन इन द रेड, व्हिच आई हैव पुट ऑन अ स्टिकी नोट। सो रेड में आप इसको रीड करें, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स ड्राइवन proliferation of mature cells. Like इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी मेच्योर सेल्स प्रेजेंट होंगे किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में, तो अंडर द फैक्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में, ग्रोथ फैक्टर्स की स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में, तो मेच्योर ऑलरेडी प्रेजेंट मेच्योर सेल्स हैं, यानी वो मेच्योर हो चुके हैं, उसके बावजूद वो अंडरगोस प्रोलिफरेशन और दे बिकम्स हाइपरप्लेजिया में चले जाएंगे, and in some cases by increased output of new cells from tissue stem cells. और हाइपरप्लेजिया में एक और मैकेनिज्म ये भी आता है कि ऑलरेडी जो न्यू सेल्स प्रेजेंट किस तरह होंगे कि जो कुछ टिश्यू में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। यानी एक स्टिमुलस सप्लाई हुआ, स्ट्रेस सप्लाई हुआ, और अगर उस टिश्यू ने अडाप्ट करना है तो अगर वो ग्रोथ फैक्टर ड्राइवन होगा तो मेच्योर सेल्स ऑलरेडी जो प्रेजेंट होंगे अंडरगोज हाइपरप्लेजिया, प्रोलिफरेट कर जाएंगे, या फिर कुछ स्टेम सेल्स जो टिश्यूज जो प्रेजेंट होंगे तो उसमें माइटोसिस होगी और जो है वो इट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया। एंड द नेक्स्ट मैकेनिज्म व्हिच आई हैव रोट इन माय ओन वर्ड्स इन ऑर्डर टू ईजी करने के लिए, व्हिच इज द सेल प्रोलिफरेशन, व्हिच इज रिटन हियर इन right bullet, right cloud, cell proliferation. So it is defined as increased production of, like मैं आपको दिखाती हूँ इसको. Yes, so by increased production of transcription factors.
इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यानी मेन मैकेनिज्म यहाँ पे यही आ जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को आप इंक्रीज कर दो। जैसे हमने पीछे भी यही बात की, तो यहाँ पे भी जो असल में पीछे जो इस पूरे मैकेनिज्म का रूट वर्ड है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। यहाँ पे TF से मैंने डिनोट किया है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? अच्छा, अब ये हो रही है, ठीक है ना, तो क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। इंक्रीज लेवल्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो गए हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इंक्रीज करें, एज रिजल्ट सेल अंडरगोस प्रोलिफरेशन। या फिर जो ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, उनमें इतनी ज़रूरत आ गई है कि वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका रिस्पॉन्स ओवरऑल ज़्यादा हो गया, सबमिट कर गया है, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज द एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग सिग्नल्स, यानी कुछ इंट्रासेलुलर सिग्नल्स भी अक्सर ऐसे होते हैं किसी एगोनिस्ट की वजह से, ग्रोथ फैक्टर की वजह से, अदर लाइक फैक्टर्स आर मे बी इन्वॉल्व्ड, जो कि इंट्रासेलुलर सिग्नल्स करते हैं और जो सेल है उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करते हैं कि अंडरगोज प्रोलिफरेशन। सो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी में, कि हाइपरट्रोफी इज जस्ट सिंपल द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेल प्रोटीन्स, सेलुलर प्रोटीन्स ज़्यादा होंगी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ज़्यादा होंगे तो सेल का साइज आपको बड़ा लगेगा, सेल स्वेलिंग नहीं हुई होगी। लेकिन हाइपरप्लेजिया के केस में क्या हो रहा है कि सेल प्रोलिफरेट कर गया है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि ऑलरेडी मैच्योर हो गया है या इतनी ज़रूरत नहीं है सेल को, लेकिन उस स्ट्रेस का जवाब देने के लिए, ठीक है, जैसे हमारी अपनी एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो उसका जवाब रिस्पॉन्स देने के लिए हम अपने आप में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, सेम इज द केस हियर। तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन होगी और सेल कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन साइज होगा और द ऑर्गन ओवरऑल इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम। Next point comes increase in number of DNA synthesizing cells, यानी ऑलरेडी जो सेल्स हैं वो DNA अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स, DNA की डुप्लीकेशन होगी, DNA सिंथेसाइज होगा और न्यू सेल्स फॉर्म होंगे, यानी नॉर्मल जो प्रोसेस होता है। इनिशिएशन इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एंड सिक्वेंशियल इंक्रीज इन प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड लीडिंग टू DNA synthesis, for example C4, C junction, nuclear factor, KB, NF-KB, signal transducer and activation of and activators of transcription। तो these are the factors जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हाइपरप्लेजिया जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली तो सेल प्रोलिफरेट नहीं करेगा, कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि प्रोड्यूस होंगे और वो फैक्टर्स क्या करेंगे कि सेल पर नॉर्मल सेल पे क्या करेंगे कि उस सेल को इस हद तक मजबूर कर देंगे कि वो जो है वो अपना नंबर इंक्रीज कर ले, ठीक है। जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, C4, C जंक्शन, न्यूक्लियर फैक्टर, KB, NF-KB, ट्रांसड्यूसर्स, एक्टिवेटर्स, लाइक अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा हो तो उसमें भी यही होता है कि कुछ एक्टिवेटर्स एनहांसर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं और सेल जो है वो लाइक यू कैन से दीज आर एक्चुअली द कॉजिंग एजेंट्स, यानी कि स्ट्रेस अप्लाई हुआ, ये ग्रोथ फैक्टर्स और ये सारे एगोनिस्ट टाइप चीज़ें बनी और इन्होंने उस सेल, क्योंकि उस सेल पर रिसेप्टर्स ऐसे थे, जैसे ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर से उस सेल की एबिलिटी ऐसी थी कि वो प्रोलिफरेट कर सकता था और वो सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर गया, वो टिश्यू ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन साइज हो गया। और अदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, दीज आर द सेल साइकिल प्रोटीन्स, MYE, P53, cyclins, growth factors, which may be HGF, EGF, TGF, cytokines like tumor necrosis factor में आप देख लें, ठीक है, tumor necrosis factor अल्फा और इंटरल्यूकिन 6। तो cytokines आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि इंटरल्यूकिन फैक्टर 6 हो गया और TNF अल्फा, जो हम बार बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि these are actually the causing agents which causes the cell to undergo माइटोसिस और सेल प्रोलिफरेशन। सिंपल, हाइपरप्लेजिया बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। हाइपरप्लेजिया एक्चुअली ऐसे सेल्स और ऐसी टिश्यूज़ में ये प्रोसेस होता है जो कि एक्टिवली प्रोलिफरेट करने की उनमें हिम्मत होती है, एबिलिटी होती है, तो वो सेल्स जो है वो हाइपरप्लेजिया करते हैं और अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स, वो कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं, वो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ये हिम्मत है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड हाइपरप्लेजिया इन प्रोस्टेटिक ग्लैंड, आपने देखा होगा कि एडल्ट ड्यू टू एजिंग एंड विद द एडल्ट लाइफ, मोस्टली इन मेन में आपने देखा मेन में ही होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है अंडरगोस हाइपरप्लेजिया, द इंक्रीज इन देयर नॉर्मल साइज, और इंक्रीज इन साइज की वजह से क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होता है वो कंप्रेस हो जाता है, तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है कि इट अंडरगोज बिनाइन प्रोस्टेटिक कैंसर, यही हाइपरप्लेजिया। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि हाइपरप्लेजिया कहीं ना कहीं इट इज़ ये फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है कि भाई अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा, हाइपरप्लेजिया टोटली रहा, तो एक टाइम आएगा कि इट अटेन्स द शेप ऑफ अ कैंसर एज वेल। Another example is the endometrial hyperplasia, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात कही कि यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें जो प्रोलिफरेशन होती है और जो उसका इंक्रीज इन साइज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज एक्चुअली ड्यू टू हाइपरप्लेजिया। तो another example is the endometrial hyperplasia which is under the hormonal control,
एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज द थायराइड हाइपरप्लेजिया. अब जो आपने सुना होगा कि देखा होगा कि थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाता है, गोइटर हो जाता है, तो गोइटर के भी जो पीछे जो पैथोलॉजी है वो यही हाइपरप्लेजिया है, थायराइड हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से गोइटर होता है और जो लाइक ड्यू टू डिक्रीज्ड आयोडीन या कोई भी पैथोलॉजिक रीजन होती है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज या जो भी, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है इट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया, ठीक है. तो 3 एग्जांपल्स इंक्लूड प्रोस्टेटिक ग्लैंड, endometrial hyperplasia and the thyroid hyperplasia, ठीक है. और prostatic gland, endometrial hyperplasia and thyroid hyperplasia, you have to learn it, okay. तो दूसरे बात हम आते हैं हाइपरप्लेजिया में कि वो फिजियोलॉजिक प्रोसेसेस हमने डिस्कस कर लिए, हम पैथोलॉजिक पर जाते हैं कि क्या पैथोलॉजी या ड्यू टू डिजीज एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स ऐसे थे जो ने हाइपरप्लेजिया करवा दिया. तो इट इंक्लूड्स हाइपरप्लेजिया इन एंडोमेट्रियम, यानी अगर फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तक तो ठीक है, प्रेगनेंसी से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन इस हद तक डेंजरस हो जाए या फिर इट अटेन्स अ पैथोलॉजिकल शेप, तो उस केस में अगर एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया होगा तो इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया. डक्टल हाइपरप्लेजिया इन ब्रेस्ट, जाहिर सी बात है, जो हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात की थी, अगर उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो अगर उधर हाइपरप्लेजिया होगा तो वो भी पैथोलॉजिक होगा. एंड द लास्ट वन इज द प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So, last point which is very much important is distinct from cancer, pathologic hyperplasia constitutes a fertile soil in which cancerous proliferations may eventually arise. लाइक ये फर्टाइल सोइल प्रोवाइड करता है, यानी एक फर्टाइल सोइल देता है, एक ज़ख़ीरा, मतलब कि एक ज़ख़ी ज़मीन देता है कि अगर ये टोटली मेटाप्लेजिया या सॉरी हाइपरप्लेजिया चलता रहा तो इट अटेन्स द शेप ऑफ कैंसर. तो कैंसर की बेसिकली जो रीज़न होती है यही होती है कि नॉर्मल तो पहले सेल में इंक्रीज इन साइज़ होता है, बाद में लाइक जैसे हम प्रोस्टेटिक ग्लैंड की एग्जाम्पल लें तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में पहले हाइपरप्लेजिया होगा और वो अपना साइज़ और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बाद में इट मे बिकम मेलिग्नेंट और बिनाइन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है. तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. If you have any query, please ask me. Next, I'm moving towards the metaplasia. Metaplasia is a very much, different concept from the above mentioned concepts. Atrophy, hyperplasia and hypertrophy से बड़ा different concept है, बड़े मजे का concept है, ठीक है. Metaplasia. And I love this term as well. So, metaplasia is defined as a reversible change in which one adult cell type, epithelium, mesenchymal, is replaced by other cell types. लाइक एक नॉर्मल ऑर्गन है और हर एक ऑर्गन की अपनी 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 एपिथीलियम होती है. फॉर एग्जाम्पल स्टमक की बात करें, आप लिवर की बात करो, आप यूरिनम की बात करें, जैसे हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी है तो हिस्टोलॉजी में वी हैव डिस्कस्ड ईच ऑर्गन्स इट्स ओन एपिथीलियम, यूरोथीलियम, ठीक है. हर अपनी ऑर्गन की एक एपिथीलियम होती है और वो एपिथीलियम इस तरह से होती है कि वो अपने ही सराउंडिंग्स को या अपने जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है उसको कोप अप कर सकती है, उसके साथ लड़ सकती है. लेकिन अगर ऐसा हो कि आप चेंजेस दे दें, स्ट्रेस अप्लाई कर दें और वो पर्टिकुलर एपिथेलियम उस सराउंडिंग को ना फेस कर सके तो इट मे बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप which is better than the first one. So it is the most important point here is the reversible change. It is the reversible change which I'm going to highlight here. It may represent substitution of cells that are sensitive to stress but their cell types but are able to withstand adverse environment. I repeat, it may represent substitution of cells, यानी उन cells को represent, यानी उन cells की substitution हो सकती है जो कि better able है उस environment को withstand करने के, उस environment को cope up करने के लिए उसके खिलाफ लड़ सकते हैं उस environment के खिलाफ, ठीक है. और मैंने जैसे highlight कर दिया reversible change, यानी अगर वो stress अगर आप ख़त्म कर दो दोबारा से अपनी असली epithelium retain कर सकते हैं, जो भी मैं examples में आपको बताऊंगी. तो influences that predispose to such metaplasia if persistent may induce cancer transformation in the metaplastic epithelium. अब वही बात ऊपर वाली कि जैसे हमने हाइपरप्लेजिया में बात पढ़ी थी कि अगर इट प्रोवाइड्स द फर्टाइल सॉइल और अगर उसको हमने स्ट्रेस को ख़त्म ना किया या हमने जो पैथोलॉजी को ना डायग्नोस किया तो इट मे लीड टू कैंसर. इसी तरह यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि अगर यही यानी अगर इन्फ्लुएंसेस इतने रहे उस सेल पे तो इट मे इंड्यूस कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन. तो कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है इन द मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम. Replacement of one different tissue by another in hostile environment. Replacement of one different tissue by another in hostile environment. ये भी हो सकता है कि अब जब हमने एपिथेलियम की बात कर ली, हो सकता है आप कोई दूसरा टिश्यू उसकी जगह रिप्लेस कर दो. एग्जाम्पल्स में मैं आती हूँ, ठीक है.
और मैं ये पॉइंट भी आपको बताती हूँ कि एपिथेलियम के अलावा अगर कोई दूसरा टिश्यूज की जगह आ जाए तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया की बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि सर्विक्स होता है, ठीक है। सर्विक्स इन फीमेल एक्सचेंज फ्रॉम सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम टू स्क्वैमस एपिथेलियम एट द स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन ऑफ सर्विक्स। अगर हमने सर्विक्स का स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी में अगर आप देखें तो हिस्टोलॉजी में वी हैव द एंडोसर्विक्स एंड वी हैव द एक्सोसर्विक्स। तो एक जंक्शनल, एक दोनों के दरमियान एक जंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर जो सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है वो एट द स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन, जो स्क्वैमो कोलमनर का जो जंक्शन होता है वहाँ पे रिप्लेस हो जाए विद द स्क्वैमस एपिथेलियम ड्यू टू, जाहिर सी बात, इरिटेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। यानी आपने क्रोनिक इरिटेशन की, उसको स्ट्रेस अप्लाई किया, तो जो उसका जंक्शन था वहाँ पे जो एपिथेलियम थी वो उस कंडीशन, उस इरिटेशन पर विस्ट्रैंड नहीं कर पा रही, तो लिहाजा उसने क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी तरह दूसरी रीजन पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इरिटेशन, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकाई विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ टोबैको, विटामिन ए डेफिशिएंसी। लाइक अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें या फिर ब्रोंकियल ट्री की बात करें तो इट इज लाइंड बाय कोलमनर एपिथेलियम। वो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम से लाइंड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की क्रॉनिक इरिटेशन किस में होगी, जो स्मोकर्स होंगे, जो टोबैको यूज़ करते होंगे, तो ब्रोंकाई कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट होगा, इरिटेट होगा, तो जो उसकी जो एपिथेलियम होगी ना वो चेंज हो जाएगी। वो कहेगी भाई मैं नहीं इस टोबैको के स्ट्रेस को या स्मोक को मैं बर्दाश्त कर सकती, तो एपिथेलियम जो है वो चेंज हो जाएगी टू स्क्वैमस एपिथेलियम एंड दैट इज टर्म्ड एज स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों में विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी तो वो जो कोलमनर एपिथेलियम होगी वो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में जा सकती है। अदर्स आर रिवर्सिबल, यानी और भी डिफरेंट रीजंस हैं और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब टिश्यू पे आते हैं कि कौन सा दूसरा टिश्यू उसकी जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल है ओशियस कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया। अब ये ओशियस कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया क्या है कि ओशियस या तो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप, बोन डेवलपमेंट हो जाएगी या फिर कार्टिलेजस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। उसकी एग्जाम्पल में आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन कार्टिलेजस साइट्स ऑफ टिश्यू इंजरी सच एज इल फिटिंग डेंचर्स। अच्छा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि इल फिटिंग डेंचर्स, आपने प्रॉपर जगह पे डेंचर अप्लाई किया और जो वहाँ पे जो खाली स्पेस रह जाएगी वहाँ पे ओशियस या फिर कार्टिलेजन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। इसी तरह मैंने एक और एग्जाम्पल पढ़ी थी कि अगर एक मसल है, ठीक है, और वहाँ पे कोई डैमेज आता है तो उस मसल में ज़रूरी नहीं कि मसल ही अब आए, वहाँ पे ओशियस या कार्टिलेजन स्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, which is referred as myositis ossificans. Myositis ossificans. Another example includes myeloid metaplasia. So, where's that? Which is myeloid metaplasia. Myeloid metaplasia, which is also referred to as extramedullary metaplasia. Extramedullary hematopoiesis. Proliferation of hematopoietic tissues in sites other than bone marrow, such as spleen, hepatosplenomegaly, such as during sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है कि जाहिर सी बात है आरबीसीज का लेवल डिक्रीज कर जाता है, तो इन ऑर्डर टू ऑक्सीजनेट द होल बॉडी, ठीक है, तो उसके लिए और आरबीसीज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो हेमाटोपाइटिक टिश्यूज़ हैं, हेमाटोपाइटिक टिश्यूज़ का डेवलप हो जाना अदर देन बोन मैरो, यानी बोन मैरो का सिर्फ काम ना हो कि वो आरबीसीज को डेवलप करे, इस तरह की एबिलिटी डेवलप हो जाए अदर देन बोन मैरो, लेकिन स्प्लीन और लिवर जिनमें ऑलरेडी कैपेसिटी होती है और फीटल लाइफ में ये आरबीसीज डेवलप भी करते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में चूँकि स्ट्रेस है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस और ये बॉडी को बार बार अलार्म कर रहा है कि भाई मुझे आरबीसीज की ज़रूरत है, तो फिर जो हेमाटोपोएसिस होगी वो स्प्लीन और लिवर में भी होने लग जाएगी, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ माइलॉइड मेटाप्लेजिया। तो मेटाप्लेजिया में हम सिर्फ ये नहीं डिस्कस करेंगे सिर्फ एपिथेलियम चेंज हो जाए, बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक टिश्यू का जो फंक्शन है वो अपने स्ट्रेस के हिसाब से चेंज हो जाए, यानी वो अपना फंक्शन चेंज कर ले, ठीक है, अपना फंक्शन दूसरे वाले ऑर्गन का फंक्शन ले ले अगर वो बेटर उसको कर सकता हो, तो ये मतलब है। जैसे हम दो एग्जाम्पल स्टडी की, विच इज़ द ओस्टियस कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया एंड दिस माइलॉइड मेटाप्लेजिया, ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह ताला। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म इज एक्चुअली द रीप्रोग्रामिंग, द की वर्ड इज द रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स प्रेजेंट नॉर्मल टिश्यूज़। नॉर्मल टिश्यूज़ में जाहिर सी बात है स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो स्टेम सेल्स देखेंगे भाई कि अब स्ट्रेस आ रहा है और अब टिश्यू जो है वो उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो स्टेम सेल्स जो है वो रीप्रोग्राम हो जाएंगे, वो अपना नॉर्मल जो उसका फेट है ना कि ऐसे कोलमनर सेल्स या स्क्वामस सेल्स प्रोड्यूस करने, अब वो अपना फंक्शन जो है वो चेंज कर लेगा। तो स्टेम सेल्स प्रेजेंट नॉर्मल टिश्यूज़, या फिर दूसरे कौन से सेल्स हो सकते हैं जो रीप्रोग्राम हो जाए, अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कुछ अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने आप को रिप्रोग्राम करते हैं और जो नॉर्मल उनका फंक्शन होता है उससे हट के वो कोई और फंक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, विच कम्स under the metaplasia. So the mechanism involves the reprogramming of stem cells present in normal tissues and of undifferentiated mesenchymal cells in connective tissue. अब ये भी जाहिर सी बात है, कोई ना कोई फैक्टर होगा जो इसको स्टिमुलेट करेगा, mediated by signals from cytokines, growth factors, etc. leads to induction of specific transcription factors. वही बात, cytokines या growth factor जो हैं वो इन stem cells पर बाइंड करेंगे और कहेंगे कि भाई अब रीप्रोग्राम हो जाओ, ठीक है, और एज रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनेंगे और सेल की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल्स पे आते हैं, ब्लेडर की बात करते हैं तो ब्लेडर में एक्चुअली में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। कौन सी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। ब्लेडर पे कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन हुई या फिर कैलकुलस स्टोन फॉर्मेशन होगी, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो ब्लेडर अगर इंजर होगा, ब्लेडर पे अगर कोई इरिटेशन होगी तो ब्लेडर जो अपनी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है उसको स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मेटाप्लेजिया, क्योंकि वो उस चीज़ को अडाप्ट कर लेगा, उसको अडाप्ट करने के लिए वो अपने आप को चेंज कर लेगा। फिर डक्टल की बात करते हैं, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, कुछ बिलरी डक्ट्स हो गई, पैंक्रियाटिक डक्ट्स हो गई, ठीक है, डाइजेस्टिव डक्ट्स जो हैं वो अपनी जो नॉर्मल सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है उससे वो स्क्वेमस में अगर कन्वर्ट हो जाए तो दैट कम्स अंडर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेरेट्स ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस का आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो, जो लोअर थर्ड पार्ट होता है इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, और उसके बाद फॉरन ही स्टमक स्टार्ट हो जाता है। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं अगर वो रिगर्जिटेट या रिफ्लेक्स अप होके ओइसोफेगस की लाइनिंग को अगर डिस्टर्ब करेंगे ना तो वो ओइसोफेगस उससे तंग आके, उसकी जो लाइनिंग है तंग आके वो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम एज दैट ऑफ स्टमक वाली अटेन कर लेगा। क्यों? ताकि जो स्टमक में जो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है सेम वही वाली अटेन करके अपने आप को अडैप्ट कर लेगा, एंड दैट इज टर्म्ड एज बेरेट्स ओइसोफेगस। एंड इट में ऑल्सो अंडरगोज कार्सिनोएडिनोमा, बाद में कार्सिनोएडिनोमा ही बन सकता है अगर स्ट्रेस को हमने ठीक ना किया। एंड द लास्ट वन इज द मेटाप्लेजिया ऑफ लंग्स, यानी एट टाइम्स लंग्स में भी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है वो क्रॉनिक इरिटेशन विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से अपने आप की जो एपिथेलियम है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। फर्दर हम एग्जाम्पल्स को डिटेल में जाते हैं। कोलमनर टू स्क्वामस टाइप, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक इरिटेशन, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्रॉनिक इरिटेशन के नतीजे में अपने आप को जो कोलमनर है उससे वो स्क्वेमस में चला जाए। स्टोन्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स इन सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास और बाइल डक्ट्स, जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैंक्रियास में या बाइल डक्ट्स में, वो स्टोन्स की वजह से कोलमनर से स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इंड्यूसेस, यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी इसमें हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एपिथेलियम है उसको चेंज कर सकती है, एंड इट्स एक्सेस डिक्रीजेस केराटिनाइजेशन इफ यू नो द विटामिन ए फंक्शंस। एंड द लास्ट वन इज द कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया, ठीक है, हमने नॉर्मल एपिथेलियम की बात कर ली। कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया किसमें हो सकता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू इन टिश्यूज दैट नॉर्मली डू नॉट कंटेन दीज एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मायोसिटिस ओसिफिकेंस। मायोसिटिस ओसिफिकेंस इज अ सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट, ए कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ऐसे टिश्यूज में ऐसे स्ट्रक्चर्स का डेवलप हो जाना जो वहाँ पे हो ही ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मसल की बात करूँ, अगर एक मसल है उसमें जाहिर सी बात है स्केलेटल मसल फाइबर्स प्रेजेंट हो गए, अगर वहाँ पे कार्टिलेज या बोन की डेवलपमेंट हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पे जो मेसेंकाइमल सेल्स थे ना अब वो कन्वर्ट हो गए इनटू कार्टिलेज और बोन, तो दैट इज ऑल्सो अ मेटाप्लेजिया, ठीक है, इट इज अ पैथोलॉजिकल स्टेट। And the last point is the influences that predisposes to metaplasia if persistent can initiate malignant transformation in metaplastic epithelium, यानी जो स्ट्रेस है, जो इन्फ्लुएंसेस है, जो कि उस मेटाप्लेजिया करवा रहा है, अगर वो कॉन्टीन्यूसली उसको हिट करता रहेगा तो जो मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम है वो फिर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन अटेन कर लेगी, यानी अब वो कार्सिनोमा और इट बिकम्स एडिनोमेटोस, कार्सिनोमेटोस, अब वो कार्सिनोमा की तरफ डेवलप हो जाएगी। यानी जाहिर सी बात है दीज आर ऑल द सेलुलर अडैप्टेशन। जैसे हमने नॉर्मली अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर ही डेवलप होता है ना कि पहले हाइपरट्रोफी होगी, अगर वो नॉर्मली हो रही है हाइपरप्लेजिया हो गया, अब हाइपरप्लेजिया की अगर फॉर्म चली जाएगी तो इट मे बिकम कैंसरस, और मेटाप्लेजिया पे कॉन्स्टेंटली होता रहेगा तो मे बिकम्स कैंसरस। नाउ आई आस्क यू अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसका मैंने आंसर भी इधर लिखा हुआ है, व्हिच टर्म इज मोस्ट लाइकली टू फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो हाइपरप्लेजिया भी हो ऑप्शन और हाइपरट्रोफी भी अगर ऑप्शन हो तो हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम होगी ना यूट्रस की वो हाइपरप्लेजिया अटेन करेगी, हाइपरप्लेजिया वो फिजियोलॉजिकली में जाएगी, और मायोमेट्रियम जो यूट्रस की होगी वो हाइपरट्रोफी करेगी, ठीक है, तो वी शुड बी नोइंग दैट।
Again, just a review of the examples which we have already discussed. Ciliate columnar epithelium of bronchial tree. Cigarette smoke की वजह से वो it may become ciliated to squamous epithelium. Squamous metaplasia में develop हो जाएगी. Transitional epithelium of bladder. Bladder में trauma of bladder हुआ तो calculus formation हुई. Stratified keratinized epithelium develop हो गया. Columnar epithelium glandular ducts. तो ducts के बाद capillary ducts में cardiac ducts हैं. वो columnar थी पहले लेकिन trauma of calculus की वजह से वो stratified squamous हो गई. Fibrocollagenous tissue. Chronic trauma, cartilage bone यानी for example फाइब्रोकोलाजिनस टिश्यू था ऑलरेडी, बाद में उसमें मेसेंकाइमल सेल्स से और में इतनी एबिलिटी थी तो इनमें बिकम कार्टिलेज और बोन. और सुफिशियल स्क्वामस एपिथेलियम, जैसे हमने पहली बात की, तो इनमें बिकम कोलमनर एज इन केस ऑफ बेटर सोसिफिकस. कोलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी may attain squamous epithelium. Just have a quick review and let's have a look on summary of what we have discussed so far. सो सेलुलर एडेप्टेशन सिंपली ये है, एक सेल अपने स्ट्रेस को या कुछ इस तरह यानी अपने स्टिमुलाई की तरफ किस रिस्पॉन्स देता है. इट मे बी फंक्शनल और स्ट्रक्चर रिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, तो इट मे बी अ चेंज इन द साइज ऑफ सेल्स which decrease in size referred to as atrophy and increase in size referred to as hypertrophy. Change in the number of cells, it may undergoes involution, decrease in number, or hyperplasia, increase in number. And the last one is the change in differentiation of cells, which is referred to as metaplasia. So thanks for watching my lecture, and this is my first video, so please give a thumbs up and please like and share this video. And if you have any query and you found any sort of mistake in my lecture, so please tell me, and